Good morning, children. How are you? I hope you will fine. So now today we start your 6th standard subject history and the topic the Indian subcontinent and history. In the last video, we have seen the geographical condition and history. After that, next we will see the geographical features of India. And now today we will see the features of India. There is the 6 regions are important. Number 1, the Himalayas. Number 2, the plain of Sindhu Ganga, Brahmaputra river. 3, the third region. 4th one, the Deccan Plateau. 5th, the coastal region. And the last one, the island in the sea. In the last video, we have seen the 3 regions. First in the Himalayas, the plains of Sindhu Ganga, Brahmaputra river, and next one is the Thar region. And now today we will start the Deccan Plateau, the coastal region and the island in the sea. So now we will start the Deccan Plateau. First we will see the Deccan Plateau which we have seen in the map. It said in the Deccan Plateau, there is a region between east and west coast of India and steppes of the साउथ इंडिया पूर्वी और पश्चिमी कोस्ट जो है उसके अलावा साउथ में आते हुए कैसा हो गया वो टेपर्स मतलब शंक्वाकार मोड में हो गया है. एंड द डेक्कन प्लेटो इज द ईस्ट साइड इज द बे ऑफ बंगाल, साउथ साइड इज द इंडियन ओशन एंड द वेस्ट साइड इज द अरेबियन सी. एंड द रीजन दैट बाउंड बाय द sea on 3 sides. Region that bound by 3 on 3 sides. Here 1 side, 2 sides and 3 sides. It's called a peninsula. It's called peninsula. The Indian peninsula maximum part is occupied by the Deccan Plateau. जो Indian peninsula है उसका जो maximum part है वो किसके द्वारा कवर है? Deccan Plateau के द्वारा कवर किया हुआ है. And now in the western side, the west side Sahyadri mountain. In the west side is the Deccan Plateau, Sahyadri mountain. It is also known as the Western Ghat. Also known as the Western Ghat. And then east side is the Eastern Ghat. This side is the Eastern mountain. It is called Eastern Ghat. And the Sahyadri mountain is the coastal region is the Konkan and Malabar region. Sahyadri coastal region is the Konkan and Malabar region. And the north side is the 2 ranges of the mountain. First one the Vindhya mountain, second one the Satpura mountain. So is the Satpura mountain. So now we start in the Deccan Plateau. The region between the east and the west coast of India tapers of the south. जो उसका ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है वो कैसा ईस्ट और वेस्ट से बचे हुए हैं. साउथ में वो टेपर्स में साउथ में वो चंपाकार होता चला गया है. After that, there is the Deccan Plateau. There, east side is the Bay of Bengal. South side is the Indian Ocean. West side is the Arabian Sea. And the north side is the 2 mountains. There are 2 mountains. First one is the Vindhya and Satpura. Vindhya and Satpura mountain. Next one is we see the peninsula. We also have peninsula. A region that bound by the sea on the 3 sides is called a peninsula. A region that bound by the sea on 3 sides is called a peninsula. मीन्स ऐसा रीजन ऐसा प्रदेश जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला. एंड द इंडियन पेनिनसुला मैक्सिमम पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेटो. नेक्स्ट वन इज द वेस्टर्न घाट. वी आल्सो सी द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड द वेस्ट साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो के जो वेस्ट साइड में क्या है? सह्याद्री माउंटेन जो कैसा है उसे क्या कहते हैं? दे आल्सो नोन एज द वेस्टर्न Ghat is also called the Western Ghat. And then east side is the east side of mountain
ऑफ डेक्कन प्लेटू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। और जो उसके ईस्ट साइड में माउंटेन है, ईस्टर्न माउंटेन को कहते हैं ईस्टर्न घाट। एंड देन इम्पोर्टेंट इज द डेक्कन प्लेटू हैज फर्टाइल लैंड। डेक्कन प्लेटू हैज फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पा एग्रीएंट कल्चर फ्लोरिश। जो डेक्कन प्लेटू कैसा है, वेरी फर्टाइल लैंड है, वो फर्टाइल लैंड है। तो जो हड़प्पा की बात की जो भी संस्कृति कल्चर थे वो वहाँ पर डेवलप हुए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर द लार्जेस्ट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया मीन प्राचीन भारत के समय में जो सबसे मतलब बड़ा राज्य था मौर्य एम्पायर, उसका भी पार्ट डेक्कन प्लेटू रह चुका है। एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर इज द other kingdoms and smaller empire are flourished here। इसके बाद क्या हुआ, जो जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, इधर डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद जो दूसरे और किंगडम थे राज्य थे, उसके अलावा स्मॉलर रीजन छोटे छोटे क्या हुए एम्पायर वहाँ पर फ्लोरिश में डेवलप होने लगे। नेक्स्ट वन में सी द कोस्टल रीजन। नेक्स्ट वन सी द कोस्टल रीजन। फर्स्ट में सी इन द मैप the coastal region is the west eastern coast and is the western coast। जो बे ऑफ बंगाल क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी किनारा है। जो अरेबियन सी क्या है, वेस्टर्न कोस्ट में पश्चिमी किनारा है। सो ये सी इन द फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पा civilization ancient India had trade relations with the वेस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पा मीन्स हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय से ही जो एंशियंट इंडिया प्राचीन समय में है ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्री मीन्स हड़प्पा संस्कृति के समय से ही जो हमारा ट्रेड रिलेशन था वो किसके था, वेस्टर्न कंट्री के साथ जुड़ा हुआ था। दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय सी। दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय सी। ये जो ट्रेड था, यह जो व्यापार था, यह मैक्सिमम क्या होता था, सी सी मतलब समुद्र के रास्ते से होता था। Therefore, India has developed contact and interaction with foreign cultures and people। Therefore, India has developed, इंडिया क्या हुआ, ये डेवलप होता गया। कॉन्टेक्ट विद द कल्चर्स एंड पीपल, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की संस्कृति थे, उनके बारे में वो धीरे धीरे डेवलप होता गया, उनसे मिलता जुलता गया। आफ्टर दैट लेटर ऑन द लैंड रूट कम फ्रॉम द ट्रेड सिस्टम। इसका क्या हुआ, जो ट्रेड सिस्टम में जो व्यापार था उसमें लैंड रूट मीन्स जमीन के रास्ते से व्यापार होने लगा। बट सी रूट इज द नॉर्थ ईस्ट में जो सी रूट था, जो समुद्री रास्ता था, उसका महत्व वैसे ही बना रहा, क्योंकि आज भी वो सबसे चीपेस्ट सबसे सस्ता रास्ता होता है किसी भी सामान को आने जाने के लिए। एंड नेक्स्ट वन the island in the sea, the island in the sea। So first we know the Indian map, there is the India has the two island, India has the two island। First one Andaman and Nicobar Island, first one Andaman and Nicobar Island which is in the Bay of Bengal। And next one is the Lakshadweep, next one is the Lakshadweep which is here located in the Arabian सी। जो अंडमान निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में बंगाली खाड़ी में। और जो लक्षद्वीप है इसे लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये कहाँ पर है, अरब सागर में। तो ऐसे इन द आइलैंड द सी वी आल्सो सी अंडमान निकोबार लोकेटेड बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द manuscript Periples of the Erythraean Sea और हैंडबुक ऑफ द रेड सी, पेरिपल्स ऑफ द एशियन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक्स अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, पेरिपल्स ऑफ द एशियन सी या हैंडबुक ऑफ द रेड सी। उसमें जो इंडियन आइलैंड है इसका महत्व बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। इट हैज बीन रिटन बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। ये जो बुक लिखी गई है
ये अननोन ग्रीक सेलर, मैं जिसका नाम नहीं पता है बट उसमें ग्रीक सेलर था, ग्रीक नाम था, उसने बुक लिखी है। एंड नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। You know that Harappa and Mohenjo-daro is the ancient civilization, but now today Harappa and Mohenjo-daro is the located in the Pakistan. Today Harappa and Mohenjo-daro in Pakistan. अब क्या जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ पे है वो पाकिस्तान में है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द कंट्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। Here, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and India. It's a make of South Asia. It's a make of South Asia. ये सारी कंट्री में क्या होती है? साउथ एशिया। इट इज आल्सो नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फॉर द एक्सपेंस ऑफ द इंडिया इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडिया का एक्सपेंस बहुत बड़ा होने की वजह से क्या हुआ, जो इसका नाम दिया गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देयर इज द विच कंट्री? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया। इट इज नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना एंड म्यांमार। चाइना एंड म्यांमार आर नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशिया, are not a part of South Asia or Indian subcontinent. जो चाइना और म्यांमार है, इट्स ऑल नेबरिंग कंट्री। वो क्या है? हमारी पड़ोसी कंट्री, हमारे पड़ोसी देश है, बट फिर भी वो साउथ एशिया के पार्ट नहीं है। बट इन द एंशिएंट टाइम देयर कल्चर एंड ट्रेड रिलेशन इज गुड इन द इंडिया। बट प्राचीन समय से ये जो उनके कल्चर और ट्रेड रिलेशन है वो इंडिया के साथ चलते रहे हैं। तो dear student, your lesson is finished here. So one time I will repeat the number one, the Deccan Plateau. You know that the Bay of Bengal, south side is the Indian Ocean, west side is the Arabian Sea, and north side is the Wind and Satpura Mountain. You know the peninsula, Western Ghat, Eastern Ghat, and the importance of the Deccan Plateau. And next one is the coastal region, the island in the sea, and the last point is the Indian subcontinent. The Indian subcontinent. So now, dear friends, your lesson is finished here. So please write down your homework. So write down your homework. Question first. What is meant by peninsula? Question number second, which islands are located in Arabian Sea? Question number 3, which mountains are located in the north side of the Deccan Plateau? So please, the 3 questions you completed in the homework. Thank you so much.